Hello, Farhat. Hello, ma'am. How are you? I'm great. How are you, ma'am? Well done. I am super. What about you? How was your last long time? I think full week is over, है ना? Yeah, too much, So, last week too much. I was too much busy, mm-hmm. and my our madam they go Thailand. She went. She went Thailand, Mm. and So you was very busy there in. last week, yes, last week I was very busy. Okay, I brought new lesson for you. In that Mm. is don't think this is for kids, but anyways, is we are learning so many things also. Sometime we know that one, sometime we don't know. Okay, Yes, but yes, yes. anyway, these three word sentences maybe in that sometime we don't know. So Yes, yes, it yes, will be ma'am. benefit for us. That is routine sentences. Okay, let's start our topic. Our topic is simple sentences about daily routine. Okay. English sentences children can use. Actually, this is made for children. My son only made this one actually Okay. about their daily routine. Like kids, they are speaking with their parents, with siblings, like this. So, first of all, number one, speaking with parents, daily routine. Daily routine mean which what we are speaking usually. Okay, kids are speaking with parents and parents are speaking with them. Just like that only sentences. Okay, normal Okay. sentences. Okay, Normal things like yeah. In that, next number two will come. Number one with parents, number two with siblings. Definitely speaking with siblings, little bit different is there. Some things which they can't speak with parents or like that. And number three, speaking with teacher. Teacher also some ah, sentences are there which is meant for teachers only they can speak. And next last one is there speaking with like friends. friends. Okay, speaking with friends. Okay, these four topics are there. In that lot of sentences is there, very easy sentences. Okay, no problem, don't worry. I mean, it is very easy, or maybe it is sometime difficult for us. Sometime little Mm. things it will stuck and we can't translate. Okay, first of all, like speaking with our parents. Okay, like kids are speaking with parents, or we can these sentences we can speak with our colleagues also, like उसको मॉडिफाई करके हम अपने कोलीग्स के साथ भी बोल सकते हैं, किसी के साथ भी बोल सकते हैं. ये तो एक एग्जाम्पल है कि पेरेंट्स के साथ बोला है. ठीक है, टॉपिक लिया है जस्ट. ओके, लाइक मुझे भूख लगी है. हाउ विल यू से दिस वन? मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। वेल डन. आई एम हंग्री प्रेजेंट टेंस है. आई एम लगाओगी. ठीक है, लगी है, भूख लगी है. आई एम हंग्री. ओके. अगर मैं कहूं कि मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ऐड कर दूं, तो क्या बोलोगी? आई एम वेरी हंग्री। वेरी। वेरी हंग्री भी कह लो, ठीक है, करेक्ट है. नो इश्यू. उसके लिए एक वर्ड होता है स्टारविंग. स्टारविंग, आई एम स्टारविंग. स्टारविंग का मतलब है बहुत भूख लगी है. ओके, वेरी को हटा के अगर आप वेरी हंग्री लिखा होता है ना, वो बेसिक में आ जाता है. अगर आप इसको स्टारविंग बोल दो तो वो एडवांस इंग्लिश में आ जाएगा. उसका हो जाएगा, वो हंग्री को रिप्लेस नहीं करेगा, वो करेगा वेरी हंग्री को. स्टारविंग वर्ड्स जो है ओके। ना, स्टारविंग, आई एम स्टारविंग यानी मुझे बहुत भूख लगी है. ठीक है, तो वो आएगा कि मैं वेरी हंग्री को रिप्लेस करेगा. ओके, हाँ। वेरी हंग्री भी करेक्ट है. मैंने ये नहीं कहा कि वेरी हंग्री जो है रॉन्ग है, आपने कह दिया. नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन वो बेसिक इंग्लिश में आ जाएगा, और वो एडवांस लेवल पे अगर आप बोलेंगी तो स्टारविंग बोल देंगी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट. स्टारविंग। स्टारविंग, बी स्टारविंग. आई एन जी डब्ल्यू आई स्टारविंग एन। भूख होता है लेकिन ज्यादा भूख. जैसे वेरी हंग्री बोला है ना, इसको जो वेरी हंग्री है वो बेसिक में आ जाएगा. जब हम बोलेंगे स्टारविंग तो वो वर्ड चेंज होके एडवांस इंग्लिश में आ जाएगा. ओके, ठीक है, ज्यादा भूख। स्टारविंग, आई एम स्टारविंग। स्टारविंग. ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे दूध चाहिए. वेरी इजी. आई वॉन्ट मिल्क। वेल डन. आई वॉन्ट मिल्क. ओके, अगर आप यहाँ पे लगा देती, अगर बिल्कुल आपने सही बोला है, आई वांट मिल्क. कुछ लोग कहते हैं आई नीड मिल्क, वो भी तो सही हो सकता है. तो नीड कहाँ पे लगेगा, वांट कहाँ पे लगेगा? नीड। नीड तो जरूरत के लिए लगता है ना, और हाँ, मुझे दूध चाहिए यानी कि मुझे विश है चाहिए, मेरी. मुझे विश पता है। है मेरी. विश. हाँ, और विश है. ओके। और नीड और वहां वो पे जरूरत है. हाँ, तो फिर क्या डिफरेंस हो गया अगर मैं कहती आई नीड मिल्क? यानी कि वो मुझे भी सही दूध होता, पीने की वो भी सही वो होता. भी। मेरी बात सुने, कुछ चीजें जो ना सिचुएशन के हिसाब से बोली जाती हैं, सिचुएशन के हिसाब से. जैसे कि मैंने चाय बनानी है, दूध नहीं है, तो आई नीड उधर मैं कह सकती हूँ जरूरत है, दूध है ही नहीं. मुझे तो वहां पे मैं कह सकती हूँ आई नीड मिल्क टू प्रिपेयर टी. ठीक है ना, तो या वहां पे आप यूज कर सकती हैं, वांट भी कर सकती हैं. वो नीड एक्चुअली वहां पे लगता है जहां पे आपकी बेसिक जरूरियात हो.
जरूरियात उसके बगैर, जैसे आई नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन, इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो नीड में आ जाएगा। पानी की जरूरत होती है, वो हमारी नीड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, वो हमारी जरूरियात है। और वांट, मुझे चाहिए, अगर ना भी मिला मर तो नहीं जाऊंगी ना। मुझे दूध हम्म, चाहिए, अगर नहीं मिलता, फर्ज करो एग्जाम्पल, मरना तो नहीं है ना। अगर ऑक्सीजन हमें ना मिली तो हम डेथ भी हो तो सकती है मतलब हमारी, तो हम मर जाएंगे। वो नीड यानी कि लाजम, उसमें लाजम आ जाता है। अब सिचुएशन के मुताबिक अगर मैं यहाँ पे कहती कि आई नीड मिल्क, अगर मुझे वो सिचुएशन आ जाती मेरी कि मुझे चाय के लिए मैं हेल्पलेस हूँ, मैं चाय नहीं बना सकती क्योंकि मुझे दूध चाहिए, वो नीड भी लगा सकती थी, वो भी ठीक है। लेकिन वांट वहां पे लगाएंगी। मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको इधर बता दूं, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दिया कि अगर नीड भी होता ना, कुछ लोग कहते हैं कि आई नीड मिल्क, तो वो भी सही है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। वो जरूरत, अगर आपको कोई जरूरत हो जिसके बगैर आप मर जाएं, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि हमें पानी है, कितने दिन तक हम पानी ना पियेंगे तो फाइनली डेथ ही हो जाएगी ना हमारी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो हम मर जाएंगे। तो उसमें कितने दिन तक हम ऑक्सीजन, अगर नहीं सफोकेशन होगी तो हम, वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है ना, वो नीड है हमारी। तो वांट में वो आ जाता है कि हमें चाहिए, अगर वेल एंड गुड, अदरवाइज नो इशू। ओके, यू आर राइट। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मुझे नींद आ रही है। हाउ विल यू से दिस वन? मुझे नींद आ रही है। आई आ रही है। आई एम स्लीपी। आई आई एम स्लीपी, ठीक है, आई एम स्लीपी, ठीक है। कुछ कुछ ठीक भी है इसमें, थोड़ा सा जो है ना, जैसे आ रही है, आ रही है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस चीज को फील कर रही हूँ ना, फील कर रही हूँ, आई तो मैंने बताया ना आपको है। आई फील स्लीप। हाँ, आई फीलिंग, आई एम फीलिंग स्लीपी, यानी कि आई आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे आ रही है ना, तो मैं उस चीज को डिस्क्राइब करूंगी ना ऐसे, इस वे में। अगर आई एम स्लीपिंग अगर लगाओगी तो वो तो मैं सो रही हूँ, वो तो गलत हो जाएगा ना, आई एम स्लीपिंग, ठीक है। हाँ, तो वो तो मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे आ हाँ, रही है आ नींद, रही मुझे है। ऐसे। ओके। इस सेंटेंस आई को एम वैसे, इस सेंटेंस को वैसे आप, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आई एम फीलिंग स्लीपी, ये तो इस रहा है, रही है के मुताबिक ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इसको अगर हम, फील ऐसा वर्ड है जिसके साथ आईएनजी ना ही लगाओ तो बेहतर है, उसको प्रेजेंट में बोलो, आई फील स्लीपी, आई फील स्लीपी, ठीक है। वो क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे अंडरस्टैंड, उसके साथ भी आईएनजी ना लगाओ। अगर आप रहा है, रही है के मुताबिक जा रही हैं तो ठीक है, आई एम फीलिंग स्लीपी, ओके, इनकरेक्ट नहीं है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि बेटर है, जिस तरह आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, याद है मैंने आपको सेंटेंस एक बोला था, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, या आई एम, मैं समझ रही हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, आई अंडरस्टैंड आएगा। उसको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बोलो, दैट इज मोर मोर गुड। आई एम, जैसे आपने बताया था, आई आई एम फील, थिंकिंग नहीं हाँ, बोलना, आई आई थिंक थिंक बोलना है बस। बोलना है, ऑलवेज आई थिंक बोलो, आई एम थिंकिंग रॉन्ग हो जाएगा। इवन कि आप सोच भी रही हो ना, तब भी आप यही बोलो, आई थिंक, ओके, आई आई थिंक, थिंक। मैं सोचती हूँ या मैंने सोचा, प्रेजेंट में बोलो, आईएनजी ना लगाओ उसके साथ। कुछ वर्ड इंग्लिश के ऐसे हैं जो कि फील भी, जैसे मैंने आपको कहा था मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्सा महसूस कर रही हूँ, वो हमारे हमने पढ़ा था ना, उसमें मैंने आपको समझाया था कि फील के साथ भी जो है ना आईएनजी अवॉइड करो तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर बोल भी दोगी तो ओके, इट्स ओके, बैड नहीं है, रॉन्ग नहीं है टोटली, लेकिन बेहतर है आई फील स्लीपी, आई फील स्लीपी, आई अगर आप इसको बोल दो तो दैट इज मोर ओके, नो इशू। बच्चों के लिए जैसे हमने लिखा है आई एम फीलिंग स्लीपी, अगर वो भी बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, तो नॉट सा रॉन्ग, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझा रही थी कि उसके साथ आईएनजी अगर ना भी लगाए ना, तो उसको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बोल सकते हैं हम, आई फील स्लीपी, ठीक है। क्या मैं खेल सकता हूँ या सकती हूँ, जो भी। क्या मैं खेल सकता हूँ? कैन आई हम्म, प्ले? कैन आई प्ले, ठीक है, वेरी गुड, इसी तरह ही आएगा, वो नीचे भी लिखा हुआ है कैन आई प्ले। मैंने अपने बेटे को कहा था, बेटा इस तरह ना, ये ना पिक्चर लगाया करो जिसके ऊपर लिखा हो। कह रहा था मामा मैं इसके ऊपर लगा दूंगा लेबल, वो भूल गया, इसके ऊपर भी लिखा होता है ना, फिर वो फायदा नहीं होता। कैन आई प्ले, कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ। अगर मैं कहती कि मैं खेल सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ। यही सेंटेंस है, ये आपके सामने है इंग्लिश में, इसको कैसे आप इधर उधर करेंगी तो क्या आएगा, मैं खेल सकती हूँ, क्या को हटा देना है, मैं खेल आई कैन सकती, प्ले। मैं आई कैन खेल, प्ले। आई कैन प्ले, ठीक है, आई के बाद कैन आएगा, ठीक है। मैं खेल नहीं सकती, आई कांट प्ले। आई कांट प्ले, वेरी गुड। कैनॉट की बजाय कांट आप कह सकते हैं, आई कांट प्ले, आई कैनॉट प्ले, ठीक है, जो भी कह सकती है। अच्छा,
क्या मैं नहीं खेल सकती? कैन क्या? आई नॉट, हाँ, कैन आई कैन आई नॉट प्ले, नॉट कैन प्ले? आई डोंट नो, नो सॉरी, नो नो, कैन आई नोट ही नॉट आएगा, क्योंकि आपने प्ले, ऑलरेडी, हाँ, डोंट, दोबारा डोंट नहीं, एक मॉडल वर्ब आपने लगा दिया है, सकता है, सकती है के कैन आई लिए। नॉट प्ले, हाँ, कैन आई, आई के बाद नॉट लगाएंगे आप, कैन आई नॉट प्ले। कैन आई वेरी नॉट गुड, प्ले, एक्सीलेंट भरत। नेक्स्ट आवर सेंटेंसेस दे आर, मेरी मदद करें, हाउ विल यू से? हेल्प मी। हेल्प मी। वेरी गुड। इसमें मैंने आपको कहा है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है, मेरी मदद करें, यही है हेल्प मी। लेकिन जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो यार थोड़ा सा हमें ना, लाइट वे में, हाँ, तो कैसे, क्या लगाओगी इसके साथ? प्लीज प्लीज हेल्प हेल्प मी, मी, प्लीज। इवन प्लीज नहीं लगा हुआ यहाँ पे, प्लीज नहीं है, लेकिन अगर हम प्लीज देखो, हेल्प मी। हेल्प ही तो मांग रहे हैं, हम मदद मांग रहे हैं, तो हेल्प मी हाँ तो है ही है, हेल्प मी हाँ, वो तो है ही है, तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्लीज बोल दें तो वो जरा अच्छे वे में आ जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है, प्रोफेशनल वे लाइट में वे भी में आ आ गया। जाएगा, प्रोफेशनल वे में। अब आप अपनी बॉस को कहें कि हेल्प मी, तो वो कोई उस वे वो में, बड़ा रूट सा लगता है ना, वो जरा हाँ, रूड सा लगता है, पोलाइट वे में आ जाएगा, थोड़ा सा मैनर्स में आ जाएगा कि प्लीज हेल्प मी। अब हम हेल्प ही मांग रहे हैं, मदद ही मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ प्लीज लिखा भी नहीं हुआ, बराए करम मेरी मदद करें, ऐसे नहीं लिखा हुआ, डजेंट मैटर। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एटलीस्ट हम उसको अच्छे तरीके में, प्रोफेशनल वे में बोलें तो ज्यादा अच्छा है। इवन दो उर्दू में लिखा है या नहीं लिखा, कली वली करो उसको, ठीक है। तो आप जो है ना, कली वली का मतलब पता है ना, कि वो यस आई अरबिक वर्ड है, कली वली करो उसको, कि उसको छोड़ दो, ठीक है। छोड़ दो, जी। अवॉइड तो करो। उसको छोड़ दो, इधर लिखा है या नहीं लिखा, बट वी आर आस्किंग हेल्प और इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो हम उसको अच्छे प्रोफेशनल वे में बोलें तो ज्यादा अच्छा है, प्लीज हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, वेरी इजी सेंटेंस। इस मैं आपसे, आई लव यू लव भी ये पता नहीं क्यों लोग झिझक जाते हैं ये लफ्ज बोलते हुए, मुझे नहीं पता। क्या कुछ इसमें कुछ और तो नहीं ऐड करना? ना, यार ये बच्चे अपनी मामा से, पापा से बोल सकते हैं, आप अपनी बेटी से, अपने हस्बैंड से बोल सकते हैं, तो व्हाट इज दैट? हाँ, बोल इसमें कुछ हाँ, बुरी कब बात है यार? मुझे ये समझाओ कि लोग इतनी नहीं, झिझक महसूस क्यों करते हैं कि मैं उसको ना करता हूँ, करती हूँ, कि कोई और डू डीड कर देंगे उसको, उसको वो सिंपल आई लव यू बोलेंगे नहीं सिंपल है। कि आई लव यू, आई लव यू एक और वैसे सिंपल सी चीज सिंपल, है। देखो ना, सिंपल चाहे रूटीन में सारा दिन बोलते हाँ, हो। बोलते हो उसको भी झिझक महसूस करेंगे, हाय ला, इसकी ट्रांसलेट हम अब क्या करें, इसका इसका करता हूँ करती हूँ पे आ जाएगा तो क्या होगा। तो इसको वे में, सिंपल वे में भी, जब बच्चों को, बताइए। बच्चे तो इजीली बोल सकते हैं मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू, आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं बेटा आई लव यू, हस्बैंड को भी कह सकते हैं, वो हस्बैंड हमें कह सकता है, तो नो इश्यू, इसमें झिझक कौन सी है। सारे वो शर्माने लग जाते हैं कि यार ये गलत क्या हो गया इसमें, पता नहीं मैंने कौन सा सेंटेंस ले आई हूँ। अच्छा, नेक्स्ट, मुझे माफ करें, प्लीज गिव मी। तो माफ किधर गया, गिव मी मुझे दे दो। नहीं, माफ को गिव मी नहीं कहते। अल्लाह, गिव का मतलब हाँ, होता है देना, देना, मुझे ये दे दो, हाँ, मुझे ये रिमोट दे दो, मुझे पानी हाँ, दे हाँ, दो। वो हाँ, तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है। तो माफ, इसका माफ को मैंने भी कुछ दिनों पहले एक अलग सा भी बड़ा मजे का लफ्ज पढ़ा था, मुझे याद, वो नहीं याद आ रहा। अब कहेंगी लो फॉर जी। गिव, फॉर हाँ, नहीं नहीं, एक हाँ, हाँ, बोलो बोलो, सही फॉर बोल रही थी। फॉर गिव, हाँ, फॉर गिव भी माफ होता है, ओके, नो इशू। फॉर गिव, हाँ मैंने यही पढ़ा था। अच्छा, प्लीज फॉर पढ़ा गिव मी। था यार, जो हम बोलते हैं उसको बोलो ना। सॉरी भी कह सकते हैं। हाँ, तो बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही हो? आई आई एम एम प्लीज, सॉरी। आई एम सॉरी, नहीं नहीं, आई एम सॉरी के अलावा मैंने एक पढ़ा था हाँ, ना, मुझे माफ माफ और कर गिव दो। भी है, फॉर गिव भी है, और अपोलोजाइज भी है, उसका भी यही होता है कि माफ करना, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज भी है, अपोलोजाइज, माफ करना, सॉरी, जो हम रूटीन में बोलते हैं एटलीस्ट वो तो बोलो आई ना। एम सॉरी। हाँ, उसमें कहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है, मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा छोड़ो। अच्छा, बस देखो क्या है, जरा बताएं मुझे, फॉर गिव मी। फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी भी कह सकते हैं, उसमें भी तो हम माफी मांग रहे हैं, प्लीज लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन इस तरह अगर हम यूजुअली, तो हम यही कहते हैं ना, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम यूजुअली सॉरी, तो हम आई एम सॉरी कहते हैं, आई एम हाँ। सॉरी, यही क्या हो ना, जो रूटीन में हम बोलते हैं पहले उसी को देख बोलो, वो आगे तक जाने की हाँ, जरूरत ओके, नहीं है, नो नीड। ओके, ठीक है, बच्चे भी जब, ओके, बच्चों को भी जब हमने कहा कि माफ कर देना, मुझे माफ कर दो, हम उर्दू में कहाँ बोलते हैं ये चीजें, हम इंग्लिश में ही हम्म। बच्चों के साथ भी बोलते हैं, बच्चे भी हमारे साथ आई एम सॉरी, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गई है अब तो वो तो सॉरी। बोलते हैं, हाँ, हाँ, रूटीन में माफ कर बोलते दें हैं। कहाँ बोला जाता है आजकल, सॉरी बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल में लेके आओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मैंने किया, आई डिड। चुप कर है। आई डिड,
कुछ लोगों ने इसको इतना गलत बनाया, मैंने किया, मैं कह रही हूँ यार, करना की इंग्लिश क्या है, करना की इंग्लिश क्या है, वो भी नहीं आ रही है। करना की इंग्लिश क्या है? मैं करती हूँ, इसकी इंग्लिश हम्म। बना लो। आपने सही बोला, आई डिड इट भी कह सकती हो, आई डिड इट या आई डिड, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं करती हूँ, प्रेजेंट आई में डू। आ गया आई डू। आपको पता है, अब कुछ लोगों से मैंने पूछा यार मैं उसको प्रेजेंट में, चल मैं बता दो, फिर उसका पास्ट लेके जाओ। नो, वो सारा ही गत्तड़ मत्तड़ ही है। वो डू डू को कर डू लेंगे, डिड नहीं बोलेंगे, डू कर लेंगे, ये आई डू पास्ट डिड टेंस। नहीं बोलेंगे। यार दूसरी फॉर्म भी लगा लो कहीं, पास्ट में भी बोल लो उसको, एटलीस्ट डिड बोलेंगे। अच्छा, मैं करूंगी, आई विल डू। वेल डन, आई विल डू। फिर उसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, करो की जगह डू आ जाएगा, गा यस। की जगह विल आ जाएगा। वेल डन, वेरी यस। गुड, वेरी गुड फरत, यू आर एक्सीलेंट। अच्छा, काफियों से बेहतर है आप। वरना आज मैं यही स्ट्रगल कर करके मैं पागल हो गई यार। मेरी बात सुनो, मैंने कहा मैं करती हूँ, प्रेजेंट में ही बोल दो, प्रेजेंट में तो बोल दिया, फिर पास्ट में उसकी दूसरी फॉर्म ही नहीं आ रही। चलो ना बोलो, ठीक है, ओके। एनीवे, नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड, वेल डन, आई एम टायर्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, चलो खाते हैं। लेट्स हाँ, वेरी ईट। गुड, वेरी गुड, लेट्स ईट। फूड पड़ा है, लेट्स फूड खाना तो छोड़ दो, पे कुछ भी हो सकता लेट्स है। लेट्स यस। ईट, वेल डन, यस। एक्सीलेंट भरत। छोटे छोटे सेंटेंसेस तो आपको एटलीस्ट आते हैं ना। आप जब आपने अपने दोस्तों से चलो यार खाते हैं, लेट्स ईट, आप बोलो इसको लेट्स ईट, ओके। ये यही मुझे यही नो, बीमारी है ना, मेरे से बोला बीमारी नहीं इसको जाता ना। परे करो। मैं यही आपको इजी इजी सेंटेंसेस लेके आई हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि यार चलो ये खाते सही हैं तो बात है। बोलना कैसे है। हाँ, लेट्स ईट मैं करेक्ट बोल रही हूँ, ओके। यस। आपने सारे ओके, सेंटेंसेस सही सही बात। बोले हैं फरत, मैंने किया हम्म। आई डिड इट, ओके, वेल डन। और आपने क्या, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपने बहुत अच्छे तरीके से बोले हैं, ओके। बस यही आते हैं हाँ, मुझे, नहीं इतने छोटे आते छोटे। हैं ना, अब इसको बोलो भी, कॉन्फिडेंस अब लाओ कि हाँ मैंने पढ़ा है, मेरी टीचर ने भी यही सिखाया, हमने सीख लिया हाँ, है, मैं मुझे इसको ये, हाँ बोलना है सही अब। बात है, मुझे हाँ, ये बिल्कुल सही हेजिटेशन है आपने कि यार बोला है। गलत है या सही है। हाँ, हाँ, इसकी तो वजह से अब नहीं क्लियर बोलती हो मैं। गया ना आपको, चलो खाते हैं, चलो खाते हैं, खाना खाते हैं या जो भी खाते हैं, जो भी आगे पड़ा है टेबल पे वो तो पड़ा ही पड़ा है, तो चलो खाते हैं। लेट्स ईट, लेट्स ईट पिज्जा, लेट्स ईट फूड, लेट्स ईट जो भी है, बिरयानी, वट एवर इज देयर। आप एटलीस्ट इतना तो बोलो, चलो खाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलो, ठीक है। आगे उसका ना फूड का नाम ले लो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब झिझकना नहीं है आपने। अब मैं ये भी कहूँ ना ओके, कि चलो इंशाल्लाह। खाते हैं या आओ खाते हैं, आओ खाते हैं, आओ खाते हैं, मैं आपको कहती हूँ चलो चलो खाते हैं या आओ खाते हैं, तब भी आपने लेट्स ही बोलना है। काम ओके। कुम ना लगा देना उधर कहीं, काम का मतलब है आना, तो आओ खाते हैं वो कमिंग में ना चले जाना कहीं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ओके। आओ खाते हैं, तो आप कम के सोच में, कम काम है ना आना, तो उसमें ना चली जाना कहीं, आप उसी को उसको भी यही बोलोगी, चलो खाते हैं या आओ खाते हैं, लेट्स ईट, ओके। उसको आप कहो कि हाँ कम कम, मैं आओ, आओ की इंग्लिश है कम है, तो मैं उधर चली गई है। आ रही मेरी बात समझ, आ रही मेरी बात समझ के कि हाँ, तो फिर उसमें चली जाओ आप कि यार उसकी आओ की तो कम है, तो कम कम ईट, ऐसे ना बोलो, आज ईट ये भी आज वही है। मैंने हाँ, आज मैंने यही यही मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। आज मैंने इसका ही सेंटेंस सुना था अरबी में, जावेद भाई बोल रहे थे ताल ताल कम आज कम आओ। वो मुझे याद आ गया, ताल ताल। तो हाँ, आप यस। उसमें ना चली जाना, उसको भी लेट्स ही बोलना है हमने, ठीक है। आओ खाते हैं या चलो अच्छा खाते मैम, हैं, ये जो लेट्स ईट। लेट्स है, ये हाँ, जो लेट्स है, मतलब ये सिर्फ क्या खाने के लिए हम यूज करेंगे? मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं नहीं खेलने, चलो आओ खेले, चलो आज, चलो के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेट्स। चलो के लिए, खाने के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। चलो चलो खेलते हैं, चलो देखते हैं, लेट्स लेट्स प्ले, लेट्स वॉच, लेट्स कुछ भी, हाँ। लेट्स कुछ भी, ओके। लेट्स गो आउटसाइड, कहाँ भी चलो, चलो या आओ, किसी को कहना ना चलो या ओके। आओ, आओ चलें, आओ चलें, ठीक है। लेट्स गो आओ चलें, ठीक है। इसको ऐसे भी, ऐसे वो आओ या चलो एक ही बात है, उसको आप लेट्स ही यूज करोगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आवर ओके। सेंटेंस इज देयर, मैं जाग गया हूँ। मैं जाग गया हूँ। आई वेक अप या आई गोट अप, नहीं, आई ये भी कह सकते हैं ना। हाँ, आई एक सही बनाया है, एक गलत बनाया है। आई गेट अप। गेट मैं देखो, अच्छा ये पास्ट सेंटेंस है देखा जाए तो, वैसे तो ये हूं लगा हुआ है, लेकिन गया हूं, मैं जागता हूं नहीं लिखा हुआ, मैं जाग गया हूं। देखो कुछ टाइम गुजर गया है ना, पास्ट है ना ये, मैं जाग गया हूं, ऐसे ही है ना। मैं जी। जाग गया हूं यानी वो काम ठीक हो है। चुका है ना, आंखें तो मेरी खुल गई हैं, मैं जाग गया हूं, यानी कि पास्ट में चला जाएगा ना, ये प्रेजेंट में तो नहीं होगा ना। आई वोकन अप।
आई वॉक, अप, वॉक, आई वॉक अप, वेक अप होता है पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म है वॉक, वॉक अप, आई वॉक। वॉक अप, मैं जाग हाँ, गया हूँ, आई वॉक अप, वेक की वॉकर नहीं दूसरी आएगा। फॉर्म हाँ, याद कर रही थी मैं। नहीं नहीं, हाँ, वॉक, वेक ओके। होता है पहला, दूसरा होता है वॉकअप, क्योंकि मैं जाग गया हूँ, वॉक, जाग गया हूँ, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, ये पास्ट की बात ही है ना, खुल आई चुकी वॉक हैं, अप। यानी कि आई वेक अप, मैं जागता हूँ, मैं जागता हूँ, अगर ये होता ना ता हूँ, होता ता हूँ, तो फिर आता आई वेक अप, मैं गया हूँ, गया हूँ आया है तो वो पास्ट में चला गया, सेकंड ठीक फॉर्म है, हो गई, पास्ट ओके। में चला गया एक्चुअली, तो इसलिए वॉकअप आएगा, ठीक है, मैं जाग गया हूँ, मैं वैसे बेड पे लेटा हूँ लेकिन मैं जाग गया हूँ, आई वॉक अप ऑलरेडी, आई वॉक अप आप कह सकती हैं, मैं जाग गई हूँ, मैं आई वॉक अप ऑलरेडी, लेकिन मैं बेड से नहीं उठी, मैं बेड पे लेटी हूँ, तो वो देन आई विल गेट अप यानी बेड से उतर जाना, तो वॉक अप यानी नींद से जाग जाना, ठीक है, आप पता है ना आपको इसका। जी, जी। ओके नेक्स्ट, मैंने दांत साफ किए, मैं आई क्लीन माई टीथ, आई ब्रश, हाँ, ब्रश लगाओगी आप, क्या आई बोलोगी, ब्रश, आई ब्रश माई टीथ, तो ये पास्ट सेंटेंस है, किए, आई डिड ब्रश, नहीं। तो वो वो जो वर्ब है किधर गया, वर्ब ब्रश वाला, वर्ब कहाँ है? वर्ब ब्रश लगाना था आई ना, आई, ब्रश्ड, हाँ ईडी लगाओगी, आई ब्रश्ड माई ब्रश, टीथ, कैसे बोलोगी, आई ब्रश, आई यस ब्रश्ड माई ब्रश्ड, टीथ, ईडी लगाओगी, क्यों, पास्ट सेंटेंस है, डिड क्यों लगाना है यार उसमें, डिड, डिड क्यों नहीं लगाना मैंने है, भी बोला। क्या मैं ब्रश करती हूँ फिर डिड आ जाएगा, फिर ये ब्रश आ जाएगा, डिड आई ब्रश माई टीथ, क्या मैं ब्रश करती हूँ, अगर मैं कहूं कि क्या मैंने ब्रश किया, वो भी पास्ट सेंटेंस है, लेकिन मैंने क्या लगा दिया उसमें, फिर उसमें क्या आएगा, क्या मैंने ब्रश किया, तो उसको क्या बनाने के लिए आप, ये वर्ब है ना, तो वो आप डिड पहले लेके आओगी, जब हम मैं पास्ट को डिड आई समझाऊंगी ना ब्रश, आपको, हाँ, ओके, ओके। डिड आई ब्रश माई टीथ, फिर ऐसे आ जाएगा, मैंने ब्रश नहीं किया, आई ये भी डोंट, पास्ट है, आई पास्ट है, पास्ट प्लीज, आई पास्ट है, डिड मैंने नॉट, ब्रश नहीं किया, हाँ आई, आई डिड नॉट, आई डोंट, नहीं, डिड नहीं नहीं, नॉट, डिड आएगा, हाँ आई डिड, आई डिड नॉट ब्रश माई टीथ, हाँ फिर ये ईडी नहीं लगेगा, वाई ईडी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डिड, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, डिड डू की ऑलरेडी सेकंड सेकंड फॉर्म फॉर्म, है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, तो इसलिए डिड उधर लग गया ईडी, तो इसलिए ये ब्रश बन जाएगा फिर, ओके, आई डिडंट या आई आई, डिड नॉट ब्रश माई टीथ, आई समझ, जब हम पास्ट सेंटेंसेस डिड कहाँ पे लगेगा, ओके नेक्स्ट आवर सेंटेंसेस देयर, मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, ये आई एम, कौन सा सेंटेंस है, आई उसका कंटिन्यूस, कंटिन्यू, वेल डन, प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट, हूँ आया ना, आई था एम, तो नहीं आया ना, रहा हूँ, यस, ओके, मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग वेल रेडी, डन, आई एम गेटिंग रेडी, वेल डन, मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, और आई एम, आईएनजी लगेगा वर्ब के आई साथ, एम, ठीक है, आई एम गेटिंग रेडी, वेल डन फरत, बेनिफिट आई एम हुआ कुछ गेटिंग, इसका, कुछ बेनिफिट हुआ कुछ छोटे छोटे बहुत सेंटेंस ज्यादा, का, हाँ बिल्कुल हुआ, तो ये छोटी आप, छोटी चीजें ये होती बच्चों है के लिए जिनमें मैं एक्चुअली कंफ्यूज बनाए हो हुए हैं, जाती बच्चों के लिए मैंने बनाए हुए हैं, मैंने कहा बड़ों को भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम ये सही बोलते हैं, या ऐसे ही बोलना है, बाज का छोटे ही हमें सेंटेंस नहीं आते, दो दो तीन तीन वर्ड्स के, ये 3 वर्ड नहीं आते सेंटेंसेस हैं ऑलमोस्ट, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये तो वेरी इजी है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके एक्सीलेंट, ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, मैंने होमवर्क कर लिया, मैंने होमवर्क होमवर्क कर लिया, आई डन माई होमवर्क, पास्ट सेंटेंस है ये, कि मैंने किया, जैसे मैंने किया हमने बोला था, तो कैसे हम इसको बोलेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म लगेगी इधर भी, हाँ तो सेकंड डन तो नहीं है, डन आई तो डिड, थर्ड फॉर्म है ना, मेरी बात सुने, डू डिड डन ऐसे है, डिड तो एट सेकंड, हाँ डू है पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म है डिड, तो थर्ड फॉर्म है डन, अगर आप डन लगा रही हैं, थर्ड फॉर्म लगा रही हैं, तो उसके साथ आप हैड लेके आएंगी, हैड लेके आएंगी, थर्ड फॉर्म अगर लगा रही हैं ना कहीं पे, तो उसके साथ आप मस्ट हैड लेके आएंगी, वो पास्ट पार्टिसिपल उसमें चला जाएगा उसको, ठीक है, यानी कि इसमें ये मैंने होमवर्क किया, आई डिड हाँ माई होमवर्क, आई डिड आएगा, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट है ये, सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड थर्ड लगाएंगी ना, वो हैड हैव उसके साथ फिर आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, टेक टुक टेकन होता है, टेकन आप कहाँ पे लगाएंगी, टेकन, वो आप थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करेंगी, हैव हैज हैड के साथ, हैव बीन, प्रेजेंट, हैव हाँ हैज, ये उसके जो साथ, तीसरी उसके फॉर्म साथ होती जो है ना वो पैसिव सेंटेंसेस, उसके साथ भी आप
वो लगाएंगी, या फिर इस तरह, वो फिर मैं बाद में समझाऊंगी उसको कि वो हैड, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगी, ठीक है। वो तीसरी जो फॉर्म है ना, अब देखो डन आपने लगाया, डन तो लगा लिया, वो तीसरी फॉर्म है यार। या तो फिर आई हैड डन माई होमवर्क, वो मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, वो थोड़ा सा इसमें था आ जाएगा तो वो करेक्ट सही हो जाएगा। फिर हैड डन लगाएंगी, हैड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, ओके। लेकिन ओके। ये पास्ट का सेंटेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी तो इसमें आई डिड, डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, ठीक है, आई मैं डिड कर माई सकती होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। आई समझ, सिंपल चीजों को हूँ। लेके आए, वो दूसरी चीजों में घुसने की अभी जरूरत नहीं है, यानी कि वो परफेक्ट है या अगले जो टेंसेस हैं हमारे, उसको बाद में हम देखेंगे, पहले सिंपल सीख लें, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ओके। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, 2 मिनट इज लेफ्ट, मुझे सोना है, आई स्लीप। मुझे सोना है। आई स्लीप। अच्छा, ये मैं बताती चलूं आपको, ना है, जहां पे ना है आ जाए, ना है, मुझे करना है, देखो ना है, अच्छा मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू स्लीप, अच्छा वहां ना टू लगेगा, जैसे कि आई हैव टू स्लीप भी कह सकती थी, मुझे सोना है, मुझे, अब यहाँ चाहता तो नहीं ना लिखा हुआ, जहाँ पे ना है करना है, यानी कि जैसे करना है, आई जाना है हैव तो टू डू, ठीक है, ठीक आई है। हैव टू डू आप कर सकती हैं, जैसे मुझे करना है, मुझे सोना है, मुझे जाना है, जैसे है, उससे वर्ब से पहले जो है ना आप टू लगाएंगी, आई वांट टू स्लीप या आई हैव टू स्लीप, वो एक ही चीज है, बात एक ही है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके वर्ड यानी कि अब आप कहेंगे यहाँ चाहिए तो नहीं लिखा हुआ, चाहिए को जरूरी नहीं है कि एक एक लफ्ज, मैंने आपको पहले भी बोला था, जरूरी नहीं है कि एक एक लफ्ज इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, बात वही हो जाती है, मुझे सोना है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई वॉन्ट टू स्लीप, ओके, मुझे सोना है, मैं यार मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप, ऐसे ही कहेंगे ना हम उसमें चाहना का लफ्ज यूज तो नहीं ना करेंगे, ठीक है। अच्छा फरहत, ओके, अल्लाह हाफिज, लेस देन अ मिनट ओके रिमेनिंग, मैम। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अच्छा मैं देखूं कितनी ओके मैम, स्लाइडें हमारी रह इंशाल्लाह। गई हैं, 1 2 3 रह गई हैं, उसके बाद हमारा सिबलिंग्स वाला आएगा टॉपिक, आई विल सेंड यू दिस वन, टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। अच्छा ओके जी, मैम। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस का मजा आया। मैम बहुत मजा आया, बहुत चले अच्छा एंड लगा, सही हाँ, बात है, बड़ी कंफ्यूज होती हूँ नहीं मैं इन सिंपल चीजों से। सिंपल जो ओके है ना, फिर मैम। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने भी इसी तरह ही बोलना है, लेट्स ईट, जब आप कह रही थी लेट्स ईट ही था, आप कॉन्फिडेंस नहीं था, नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह कॉन्फिडेंस में ही बोलें, ठीक है। ओके, लेस ओके देन अ मैम, मिनट बाय। रिमेनिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।